Good morning, students. Welcome back to your online sessions of Science Class 8. I hope you and family will be safe in this pandemic situation. So I requested to you, just don't go outside your homes unnecessary, avoid to go into the crowded places, and always be use of face mask covers when you go outside your homes. Always be take sanitizers with you and wash your hands within a 20-second specific time of interval when you are in home. So stay home and stay safe. Now students, like discussing about the today's topic is the chapter number 9 in your syllabus, that is reproduction in living organism, right? So in the previously two part, what we have to be discussed in the first part, one is the asexual method of the reproduction into the living organism. Also we have to be discussing about the sexual reproduction into the living organism. So these are the two methods of sexual reproduction and how sexual reproduction that will be done into the living organism that we have to discuss in the previous class. Today we are discussing about the fertilization process, now how the development of embryo that can be taken place, or maybe the life cycle of butterfly or life cycle of frog, which is called as a metamorphosis. These are the topics that we are discussing onto the today's lecture. So before we discussing this chapter, generally we just revise what we have to discussing into the previous class. First of all, when we start this chapter, we're discussing about why the reproduction is necessary to each and every organisms. What is the meaning of reproduction? What is the method of asexual reproduction, in which we are discussing about the budding method, regeneration method is there, spore formation is there, binary fusion is there. These are the topics that we discussion as a part of the asexual method. While moving on to the sexual reproduction, is generally considered as a both male and female gametes as a part of the sex organs. So these are the part of the sexual reproduction. इसमें भी हमने डिस्कशन किया था कि मेल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन होता है, इन विच जनरली इंक्लूड द टू मेन फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज अ मेल reproductive organs and female reproductive organs, right? So female reproductive organs के अंदर हमने यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, वेजिना है, उसके बाद सर्विक्स है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था. वाइल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसे आप देखें तो स्कॉटफ्रॉम आता है, टेस्टिस आता है, एपिडिमस आता है, पेनिस आते हैं, ऐसे अलग अलग फॉर्मेशन इसके अंदर आते हैं. This is a topic that we are discussing in our previous class, but today we are discussing about the specific formation of the development of embryo. So before discussing that, we generally just revise what is called fertilization, because after the fertilization this process will be implementation. So after the sperms and the eggs which are being produced by the male and female as a part of the sexual gametes, they should be as a part of the fusions. While the male sexual implementation of the hormones, while the female sexual hormones, that when they combine to each other, they generally implement a new part of the fusions, is a part of the joining of this type of nucleus. This is called the fusion of nucleus. So fusions of this type of formation of sperms and the eggs, which is called as a fertilization, इसको हम fertilization process कहते हैं कि मेल का जो सेक्सुअली हार्मोन्स और फीमेल का जो सेक्सुअली हार्मोन्स है, जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. So fertilization that generally take place when inside the female body, so it is also called as an internal fertilization. ये जो fertilization होता है inside of female body होता है, इसलिए आप इसको internal fertilization भी कह सकते हैं. So during the process of this fertilization, the nucleus of the sperms as well as the nucleus of the egg that should be fused and creating a single form of nucleus that is called as a fertilized egg, which is also known as a zygote. उसको आप क्या कहते हैं? zygote. So zygote is a new individual cell which is also called as a fertilized cells through the male and female sexual hormones. ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? That is called as a fertilized cell, जिसको हम zygote कहते हैं. After the zygote, the entire development of the embryo जो वहाँ पे start होता है, जो फिगर मैंने ड्रॉ किया ना, यूट्रस है, ओवरीज है, zygote है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है. जनरली क्या होता है, जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है उसमें सबसे पहले फर्टिलाइज एग होता है. फर्टिलाइज सेल्स एग्स दो सेल्स में डिवाइडेड करता है, दो सेल्स उसको चार सेल में, चार सेल उसको आठ सेल में, आठ उसको बॉल्स ऑफ सेल के अंदर छोटे छोटे जो बॉल्स जैसे एक है ना, उसे बॉल्स ऑफ सेल के अंदर उसको डिवाइडेड करता है, उसमें से एम्ब्रियो बनता है, उसमें से प्लेसेंटा बनता है. ऐसे अलग अलग फॉर्म बनता है, राइट. सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सबसे पहले तो फर्टिलाइज एक सेल होगा, वो दो सेल में कन्वर्ट करेगा, उस दो सेल को चार सेल में, चार को आठ सेल में. वैसे नंबर ऑफ वैसे जो फॉर्मेशन होते हैं, सेल्स बनते हैं, और वो सेल्स क्या बनाता है, वो सेल्स धीरे धीरे एम्ब्रियो को डेवलप करता है. वहाँ पे एक सीन बनता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और उस प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. सो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो.
So generally the development of embryo is started from the zygote. Zygote is what? It is generally one fertilized cell जो मेल स्पर्म्स और फीमेल एग सेल्स जो होते हैं उसका फ्यूजन से ये बनता है, जिसको फर्टिलाइज एग सेल और zygote आप कह सकते हो. So development of embryo that can be generally implemented by the part of the zygote. Zygote से वो part start होता है embryo का development. So during this development, the fertilized egg generally having a movement from the oviduct in uterus and get attached to the specific form of wall. uterus की wall से attach हो जाता है. ये जो movement जो होता है, जो fertilized eggs जो होते हैं generally start to be moves from oviduct to uterus, क्योंकि fertilization process oviduct के अंदर ही होता है और oviduct से वो कहाँ जाता है? यूट्रस के अंदर जाता है, राइट. सो जनरली जो फर्टिलाइज्ड सेल्स जो होते हैं ज़ायगोट, दे जनरली मूव फ्रॉम ओविडक्ट टू यूट्रस, और यूट्रस की जो वॉल होती है उस यूट्रस की वॉल के अंदर वो इंप्लेंटेड हो जाता है. ज़ायगोट कहाँ जाता है? ओविडक्ट से. ओव्यूलेशन प्रोसेस ओविडक्ट से कहाँ पे जाता है? यूट्रस के अंदर, जहाँ पे यूट्रस की वॉल जो होती है उसकी वॉल के साथ वो अटैच हो जाता है. तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं. ऐसा एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं. PLACENTA. अभी प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या होता है? जनरली मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ऑफ जनरली हैव टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड द फूड दैट जनरली फ्रॉम द fetus एंड आल्सो डिस्पोज द अनयूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द किडनी ऑफ द मदर्स. तो जो fetus होता है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, fetus के अंदर जो जरूरी ऑक्सीजन है और जो फूड है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? वो प्लेसेंटा करता है. तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो मदर के यूट्रस वॉल के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसको जो प्रॉपरली ऑर्गेनिजम्स में जो फूड है या ऑक्सीजन है वो सप्लाई करने का काम जो होता है प्लेसेंटा करता है. सो प्लेसेंटा जनरली अ न्यू स्ट्रक्चर implementation as a form that is called as a placenta. Placenta is a place where the development of embryo that fix the uterus wall. The placenta is that kind of area where this type of the new organism that can be fixed as a part of the uterus wall. So after the 8 weeks, जैसे 8 weeks complete हो जाते हैं, ये implementation हो जाता है 8 weeks यानी approximate 2 months. 2 महीने के बाद क्या होता है कि generally the major organs यूट्रस फॉर्मेशंस के अंदर, जैसे प्लेसेंटा के अंदर ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स इंप्लीमेंटेशन होता है एम्ब्रियो के फॉर्म में, तो आफ्टर 2 वीक्स अप्रोक्सीमेट और 8 वीक्स अप्रोक्सीमेट ऑफ 2 मंथ्स एक अलग अलग ऑर्गन्स उसके बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जैसे हैंड्स है, लेग्स है, आईज है, ईयर्स है. These are the organs that should be started to develop after the 2 month. It generally formed in the embryo. Embryo से वो start होते हैं organism के अंदर develop होने के लिए. So the embryo is the stage. Embryo एक ऐसा stage होता है जहाँ पे one of the most of the body part is identified. That is called as a fetus. Embryo एक ऐसा part होता है जहाँ पे organisms का most of the body parts आप identify कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? fetus कहते हैं. fetus into the uterus. वो उसके अंदर कैसे implementation होता है? That can be easily implemented. तो ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आफ्टर द 16th वीक पे जैसे आप जाते हो तो ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म टू बी इम्प्लीमेंटेशन लाइक किकिंग ऑफ द मदर्स यूट्रस वॉल्स, तो वो किक करने लगता है, तो वो जो मदर्स को फील होता है कि सम ऑफ देम किक इनटू द इनसाइड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस. तो डेवलपमेंट ऑफ fetus स्टार्ट टू बी रेडी टू बी बॉर्न. ये इम्प्लीमेंट करता है कि स्टार्ट टू बी रेडी टू बी बॉर्न. तो यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि अभी जनरली कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट ट्यूब बेबीज का. हम रिसेंटली बहुत तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत तरह के ऐसे न्यूज़ में देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं. सो टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है? तो सम वुमन कैन नॉट बी बियर अ बेबीज इन देयर ओविडक्ट एज वेल एज इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स दैट शैल बी ब्लॉक्ड एंड स्पर्म कैन नॉट बी रीच्ड एज अ पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. कुछ वुमेन्स के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से जो स्पर्म सेंटर होता है उनके बॉडी के अंदर, इट कैन नॉट बी रीच एज अ पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ओविडक्ट तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है स्पर्म्स और एग सेल का वो वहाँ पे होता नहीं है, जिसकी वजह से सेल जो है फर्टिलाइज होते नहीं है. सो इन दिस केस ऑफ टेक्निक, ऐसे टेक्निक्स के अंदर एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन मेथड होती है जिसको विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं. विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड यूज की जाती है. अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, जहाँ पे जो मेल का स्पर्म और फीमेल के जो एग सेल्स होते हैं दोनों को कलेक्ट किए जाते हैं. दैट शुड बी टुगेदर इम्प्लीमेंटेशन द फ्यू फॉर्म्स ऑफ द बलून्स ऑफ लाइक ट्यूब्स, उसके अंदर उसको रखा जाता है और जहाँ पे आईवीएफ टेक्निक से उसको फर्टिलाइज किया जाता है. और जब फर्टिलाइज हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है? ज़ायगोट जब फर्टिलाइज होता है तो अबाउट अ स्पेसिफिक वीक इसको क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है वुमेन्स के यूट्रस के अंदर.
जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ह्यूमन के यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इसको फर्टिलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से नया डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर इंप्लीमेंटेड होता है एट द पार्ट ऑफ द बेबी, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, विच इज पार्ट ऑफ द आईवीएफ टेक्नोलॉजी, विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड होता है। इसी में एक और टेक्निक आता है जिसको हम क्लोनिंग टेक्निक कहते हैं। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज दैट काइंड ऑफ मेथड जिसमें सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वहां पे जनरेटेड होता है। पर क्लोनिंग इज अ पार्ट ऑफ द असेक्सुअल मेथड, जिसमें केवल एक ही सिंगल पेरेंट सेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन्स एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो हार्मोन्स है वो यूज किया जाता है, उसी का यूज करके एग्जैक्ट कॉपी ऑफ नया ऑर्गेनिजम्स एज लाइक एज आइडेंटिकल बनाया जाता है, जिसको हम क्लोनिंग मेथड कहते हैं। एक डॉलीसिप करके एक इम्प्लीमेंटेशन था जो इम्प्लीमेंट किया गया था एज अ मेथड ऑफ द क्लोनिंग। तो ये पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस देखने को मिलता है कि कौन से वीक में क्या होता है, किस प्रोसेस में आगे मूव कर कैसे पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। तो पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूट्रस वॉल के अंदर है, फिर वो कैसे फॉइटस के अंदर कन्वर्टेड होता है, कैसे वो जाइगोट का नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करता है, इट हैविंग अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, एक स्पेसिफिक पीक और पीक के डिफरेंशिएशंस के बाद इट शुड बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद जाइगोट से फिर यूट्रस से ओविडक्ट से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ यूट्रस वॉल कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो से फॉइटस से लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीस आर द कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड ऑफ द यूट्रस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है वो है मेटामॉर्फोसिस के बारे में। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। मैं आपको दो लाइफ साइकिल समझाता हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये आपका लास्ट टॉपिक है, दिस आर द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, वो हम डिस्कशन करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करके मेटामॉर्फोसिस। अभी यहाँ पे चीज समझना है कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं कि व्हेन द ड्यूरिंग ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम एन फर्टिलाइज्ड एग टू एन एडल्ट, फर्टिलाइज्ड एग से जैसे जैसे नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, नया ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक एडल्ट के अंदर कन्वर्टेड होता है, तो वी सीन दैट देयर इज अ कंसिडरेबली चेंजेस इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। उनके बॉडी के अंदर ऐसे बहुत तरह के डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चर चेंज, जैसे हम छोटे थे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होता है, जैसे जैसे अडल्ट से हम इम्प्लीमेंटेशन का स्पेसिफिक एज लिमिट में हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। So most ofly in some of the animals or mostly the animals, the fertilized eggs that develops into the part of the embryo, जो eggs developed होते हैं, fertilized eggs होते हैं, वो fertilized eggs जो होते हैं embryo में converted होते हैं, which generally increase their size and volume, उनका volume और size क्या होता है, increase होता है, और that should be converted into the part of adult, वो adult के अंदर convert होते हैं fertilized egg से specific time limits के अंदर। So most ofly some of the animals like frogs, butterfly, a silkworm, these are the animals which having the young ones look like a different from the adults। उनका जो young ones होते हैं, वो जो नए organisms produce करते हैं, it generally look like from the adults। adults का पूरा body structure अलग होगा और जो छोटे young ones होंगे उनका पूरा body structure अलग होता है। So you have already learned about the how the development of baby that can be taken place into the human के अंदर कैसे बेबी टेकन प्लेस होता है, वो मैंने आपको समझा कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जाइगोट एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है। सो अभी हमें ब्रीफली डिस्कशन करना है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और फ्रॉग के बारे में। ये पूरा एक फॉर्मेशन होता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? सो मेटामॉर्फोसिस मतलब द प्रोसेस बाय विच द यंग्स फ्रॉम ऑफ स्पेसिफिक इंसेक्ट एज सम एनिमल्स, process by which some of the young from insects or maybe from the animals such as like a frogs develops into the adult form is known as a metamorphosis। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। पहले मैं आपको फ्रॉग के बारे में समझाता हूँ, फिर मैं पहले मैं बटरफ्लाई समझाता हूँ, फिर फ्रॉग के बारे में समझाता हूँ। मैंने फिगर केवल फ्रॉग की दी है क्योंकि आपके बुक में केवल फ्रॉग का ही फिगर दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, पहले हम डिस्कशन करते हैं बटरफ्लाई के अंदर लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दैट शुड बी अंडरगोज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस में बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले तो उसका स्टेज क्या होता है, एग्स। बटरफ्लाई की इंप्लीमेंटेशन द पार्ट ऑफ फर्टिलाइज एग्स। एग्स के अंदर से एक नया फॉर्मेशन बनता है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। एग्स में से वो छोटे से इंसेक्ट बनते हैं जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर में से वो थोड़ा सा इंप्लीमेंट होता है, उसको हम प्यूपा कहते हैं, PUPA प्यूपा। और प्यूपा से आगे मूव करता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट बटरफ्लाई के अंदर कंसीडर होता है। सो इन दिस केस ये जो आपका जो कैटरपिलर और जो प्यूपा का जो कॉन्सेप्ट होता है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट बटरफ्लाई। अगर आप कैटरपिलर और प्यूपा का अगर आप फिगर देखेंगे, उसके इंसेक्ट्स को अगर आप देखेंगे, जो उसका शेप होता है, इट्स शेप इज क्वाइट
डिफरेंट फ्रॉम द बटरफ्लाई, जो एडल्ट बटरफ्लाई होता है उससे क्वाइट डिफरेंट होता है. सो द फीचर्स that the presents in the adults which are not found into the earlier stages of the life cycle of their young ones. तो जो एडल्ट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल्स के अंदर जो उसका जो प्रॉपर्टीज और जो फीचर्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन इनटू देयर यंग वंस, जो एडल्ट्स फॉर्मेशन में स्टार्टिंग स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं. तो मेटामॉर्फोसिस होता है कि पूरा डिफरेंशिएशन होता है स्टेज में. अभी हम डिस्कशन करना है लाइफ साइकिल फ्रॉग के बारे में. तो देखो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस मैंने लिखे हैं. A for the X, B for the early tadpole, C for the late tadpole और D for the adult frog. ऐसे अलग-अलग स्टेजेस मैंने आपको अपने डिफाइन करके दिया है. So if you think that कि as a part of the life cycle in a specific formation of frogs, that should be a different formation to the implementation of the long form. Like the eggs converted into the tadpoles, that is called as a larva. Eggs converted into the tadpole, that is called as a larva, and the tadpoles is converted into the form of adult frog. ऐसे उसका पूरा लाइफ साइकिल बनता है. So if you see the size of tadpoles which are very different from the adult frog, अगर आप tadpoles को देखेंगे ना तो tadpole के देखो शेप पूरा डिफरेंट है. एडल्ट का जो ये 2 लेट और अर्ली tadpole है वो तो फ्रॉग से पूरा डिफरेंट दिख रहा है. So if you see the figure of the tadpoles in the earlier stages, it is quite different shape comparison to the adult frog. Frog से पूरा different stage होता है. So the process by changes of the tadpole or may be called as a caterpillar, that is changes into the adult frog, that is called as a metamorphosis. तो इस process को आप क्या कहते हैं? Metamorphosis कहते हैं, right? तो ये आपका इस चैप्टर का पूरा डिटेल था. क्या आई होप कि what today's sessions about development of embryo as well as the metamorphosis in the butterfly and the frog life cycle, that should be easily understood by you. So from moving on to the next chapter, when we meet tomorrow, we're discussing about the other topic in another chapter. Students, keep revising and keep updating your knowledge by using some of the digital mediums of the learning as well as your textbook from the syllabus. Okay, once again, stay home, stay safe, take care and bye.